क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, उसमें हम इसी टाइप का मॉडल जिसकी आपने अभी प्रेजेंटेशन दी, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब मोर जनरलाइज उसको हम एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन उसके लिए डेवलप कर सकते हैं, दैट विल बी फोकस्ड ऑन आवर नीड्स, Yes, sir. that won't be open for everybody across the globe, जैसे ये open है couch surfing, it is open for every person across the globe whosoever wants to uh, become a member, whether he is from US, Europe, Africa, India. So there is a free membership for that. But when we have a focused application which we have developed for a particular purpose, as here we are talking about the cross-border tourism. So in that, we will have only those members who are living across the border of the places we are going to promote Yes, peace sir. within. So suppose in this case, we will keep those people eligible for membership who are either from the Pakistan part of Kashmir or from the Indian part of Kashmir, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So once they will be eligible for the membership on that platform, that means we will have members only from these two areas. And Yes, sir. what will happen by result of that? By result of that, that means whatsoever movement will take place, that will take place across the border and here Border. across the line of control. So that will be the second aspect of that. उसमें ये नहीं होगा कि, for example, when we talk about this part of Kashmir, it will include Baramulla, it will include this Kulgam, it will include Shipyan as well, isn't it? But there is a possibility that once there are members, maybe one member is from Baramulla and another member is from, say, Shipyan. And now Yes, sir. a person from Shipyan will want to visit Baramulla, or a person from Baramulla would like to visit Shipyan. So there is a possibility that these two families or these two persons can go to each other's home, isn't it? Suppose Yes, sir. the person coming from Shipyan will stay with a family in Baramulla, and a person who is intending from Baramulla to go to Shipyan will stay with a family there. But that will dilute our purpose. We won't keep that thing in that application. Kyun? Why not? Yes, sir. Why not? Because our sole focus will be on promoting cross-border tourism. And since Baramulla and Supian are lying on the same part of the border, so there will be Yes, sir. no cross-border tourism in that, isn't it? Yes, And yes, that sir. won't serve our purpose, and that will dilute the main focus of our project or of our objective. So for that, we will keep inbuilt that aspect जो हम जब हम करते हैं ना, आजकल तो एंड्रॉयड एप्स डेवलप करते हैं जो प्ले स्टोर पे आती है, Yes, तो sir. उसके लिए बाज़ाब्ता स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो उस ऐप को डेवलप करते हैं, दे आर वेल Yes, versed with the knowledge which is required for developing those applications so that they can be user friendly, so that those apps can be customized as per the requirements, as per the needs. You got it? तो हम क्या करेंगे, हम उस हिसाब से उस पर काम करेंगे, we will work from that aspect. And with that, what will happen?
the application itself won't allow that thing to take place. तो अगर कोई ऐसा करना भी चाहेगा, वो स्टे करना चाहेगा, सपोज शुपियान की फैमिली बारामुल्ला में, क्योंकि मेंबर तो वो भी है, मेंबर वो भी है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन में ही इंटीग्रेटेड ऐसी एक फंक्शन होगी, ऐसा एक मैकेनिज्म होगा जो उसको अलाउ नहीं करेगा, जो पहले ये देखेगा कि क्या क्या ये दो जो आपस में भी एक दूसरे के पास जाना चाहते हैं, क्या ये इनके बीच में सेपरेशन बॉर्डर की है या नहीं, कि मतलब दे आर फ्रॉम Yes, sir. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस, दे आर लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर। तो वो चीज जो है वो एक एलिजिबिलिटी बनेगी उसके लिए। तो अब हमने देखा, या कोई सपोज फॉर एग्जांपल मे बी अ पर्सन फ्रॉम से हरियाणा would open this application and try to become a member of it, as you did it yesterday or the day before yesterday. You opened Yes, sir. this application of this website of Couchsurfing, and you started the process and became a member. And similarly, once we will develop that application, and then anybody from other parts, say Haryana or say Chandigarh or say Delhi, will like to become a member. It He won't be able to be a member because membership won't be accepted. Why? Membership won't be Border is accepted. Membership won't be accepted because he or she is not the resident of that place, क्योंकि उसके लिए पहले, जिसको हम रेजिडेंस डोमिसिलिटी कहते हैं, जो उस जगह का yes, रहने वाला होना चाहिए, तो वो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। गॉट इट? तो उसके लिए yes, yes, yes. एप्लीकेशन में पॉसिबिलिटी एक ये है कि उसमें जो हमारे क्या कहते हैं उसको जियो टैगिंग कहें या जो गूगल अर्थ का यूज करते हैं, तो उससे एप्लीकेशन गूगल अर्थ के थ्रू, वो जियो टैगिंग मैकेनिज्म के थ्रू आपकी लोकेशन को खुद एक्सेस करती है, बिना आपके, मतलब सपोज आप अभी हैं बांडीपुरा में फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. तो मैं अभी हूँ श्रीनगर में। अब मैंने कोई वेबसाइट ओपन, और वेबसाइट पे मुझे एड्रेस देना है, और एड्रेस में मुझे सपोज मैं दूंगा एड्रेस या प्रेजेंट लोकेशन दूंगा मैं से साउथ कश्मीर की, लेकिन मैं सेंट्रल कश्मीर में हूँ, तो वो डिटेक्ट करेगा वो चीज़ कि नहीं जी ये साउथ कश्मीर में भी नहीं है, ये सेंट्रल कश्मीर। या आप दोगे साउथ कश्मीर की प्रेजेंट लोकेशन अपनी, तो वो डिटेक्ट करेगा नहीं जी ये नॉर्थ कश्मीर में है, साउथ कश्मीर में नहीं है, क्योंकि जो आपका जो जब आप कनेक्टेड हैं, तो नेचुरली आजकल तो जीमेल के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं मोस्टली, क्योंकि जब आप स्मार्टफोन भी लेते हैं तो आप लॉग इन करते हैं एक अकाउंट के थ्रू, इजंट इट? Yes, sir. और जब आप लॉग इन करते हैं तो नेचुरली आप जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल के साथ, आईएसपी जिसे कहते हैं, बाकी जो गूगल के साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो लोकेशन है, जैसे आप देखते हैं सपोज लोकेशन आपके इसमें आता है ना, इसमें स्मार्टफोन में, Yes, अगर sir. आप किसी जगह हैं तो आपसे कोई मिलना चाहता है, वो आपको बोलता है जरा मुझे अपनी लोकेशन सेंड कीजिए, आप क्या करते हैं? तो लोकेशन टैप पे करते हैं और उसको सेंड करते हैं। कैसे सेंड करते हैं? आप लिखते हैं उसमें कुछ? व्हाट्सएप थ्रू। यस सर। व्हाट्सएप के थ्रू भी करते हैं। ओके, व्हाट्सएप के थ्रू करते या हैं, गूगल मैप्स आप उस पर कुछ लिखते हैं? नो सर, वो ऑटोमेटिकली जनरेट सर होती है। वेरी गुड, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप खाली
लोकेशन पे क्लिक करते हैं और वो फिर उसको व्हाट्सएप या और जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए मीडिया यूज करते हैं, उसके थ्रू आप उसको सेंड करते हैं, इजंट इट? और वो उसको क्लिक करके खुद ही उसको प्रॉपरली आप तक ले जाता है। इवन अगर आपने तब तक वहां से थोड़ा सा मूव भी किया होता है, तो वो उसको आपके पास पहुंचाता है। तो ये चीज जो है, ये आ, वो तब होता है जब सिस्टम कनेक्टेड है। जैसे हम गूगल अर्थ की बात करते हैं, अगर आप गूगल अर्थ का आपने कभी यूज किया है? गूगल मैप्स है सर, यूज किए हैं गूगल अर्थ। मैप है ना? तो गूगल मैप का जब आप यूज करते यस हैं, सर। तो वहाँ आपको, क्योंकि उनको सैटेलाइट पिक्चर्स होते हैं, मतलब इवन किसी यस किसी सर। वक्त रियल टाइम होते हैं, किसी किसी वक्त पीरियोडिकली वो काम करते हैं। और वो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इवन आपका जो घर है वो तक आप उसको उसमें देख सकते हैं, यस सर। इजंट इट? तो दैट मीन्स कि जब हम उस एप्लीकेशन में इन फीचर्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो वो उसका यूज करके उस मैकेनिज्म को सेट करते हैं, ताकि जब मेंबरशिप होती है, क्योंकि फ्री मेंबर्स के लिए अब आप ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको मे बी आपको उनके लिए ज्यादा स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम करेगा वो चीज। सिस्टम देखेगा कि क्या वाकई वो इस लोकेशन से है या नहीं, और उसके बेसिस पे सिस्टम उसकी मेंबरशिप को अलाउ या डिसअलाउ करेगा। तो ये एक चीज है। दूसरा एस्पेक्ट उसमें लिमिटेशन है, वो ये है कि कभी कोई कश्मीर का होगा, सपोज इस पार्ट के कश्मीर का है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर का, या कोई है जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर को बिलोंग करता है। मे बी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर का कोई लड़का है, वो पढ़ता है, ही इज द स्टूडेंट ऑफ से कॉलेज इन चंडीगढ़ और दिल्ली। लेकिन अब आप क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के लिए अब हम ये मॉडल प्रमोट कर रहे हैं, तो नेचुरली मे बी वो भी उस मॉडल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, और वो भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा। Once he will try to do that, what will happen? वो उसे अलो नहीं करेंगे, वो उसको अलाउ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो लोकेशन जनरेट जब होगी तो वो क्रॉस बॉर्डर नहीं होगा। वेरी गुड। बिकॉज जो आपने सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सिस्टम यूज करेगा, क्योंकि सिस्टम थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखेगा कि ये इस वक्त मतलब ये नहीं है कश्मीर से, इस पार्ट से, क्योंकि उसकी लोकेशन वो टैग करेगा डेट विल बी फ्रॉम चंडीगढ़ और दिल्ली। तो सिस्टम आइडेंटिफाई यस सर। करेगा कि दिस पर्सन इज नॉट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द बॉर्डर हु इज एलिजिबल फॉर दिस मेंबरशिप, और वो उसकी मेंबरशिप को डिसअलाउ करेगा, इजंट इट? लेकिन अब यहाँ पे एक चैलेंज ये आता है कि वो जो है वो वाकई एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, इस मेंबरशिप के लिए, बिकॉज ही इज द रियल रेजिडेंट, इजंट इट? बट सिस्टम वॉन्ट अलाउ इट, क्योंकि अगर यस सिस्टम सर। वहां पे उसको अलाउ किया, तो बाकी लोग भी वहां से फिर उस लोकेशन से मेंबर बन सकते हैं, यस इजंट इट? अब यहाँ पे सर। सिस्टम में इंटीग्रेट होती है फीचर्स। सपोज, इसीलिए वो उसमें लिखेगा पहले एड्रेस प्रूफ, मतलब ना एड्रेस, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस। तो रेजिडेंशियल एड्रेस उसका होगा समवेयर, मे बी ही इज फ्रॉम श्रीनगर, ही इज फ्रॉम बारामूला, ही इज फ्रॉम शुपियान, ही इज फ्रॉम पुलवामा। तो उसने एक्चुअल जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो दे दिया, और प्रेजेंट एड्रेस में उसने लिखा जहाँ पे वो पढ़ रहा है, कॉलेज है क्या है। अब ये दो चीजें आ गई। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को तो ऑथेंटिकेट कर सकता है जो सिस्टम है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन टैगिंग के थ्रू, गूगल मैप के थ्रू ये कंफर्म कर सकता है कि हाँ, इसकी प्रेजेंट लोकेशन चंडीगढ़ है, दिल्ली में। लेकिन
जो उसकी ओरिजिनल एक्चुअल लोकेशन है, दैट इज समवेयर इन पुलवामा, श्रीनगर और से एनी अदर पार्ट ऑफ कश्मीर, उसको एस्टेब्लिश कैसे करेगा सिस्टम? क्योंकि अब उस चीज को तो एस्टेब्लिश करना है, और उस चीज को तो सिस्टम को एस्टेब्लिश एज सच मैकेनिज्म नहीं है करने का, क्योंकि क्या कैसे कर सकता है? तो इसलिए वहां पे एक ऑप्शन रखना है जिसे हम कहेंगे वेरीफाइड मेंबरशिप, क्योंकि हम उस ऐप में भी एक तो फ्री मेंबरशिप रखेंगे, दूसरी वेरीफाइड मेंबरशिप रखेंगे। तो जो वेरीफाइड मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसमें ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है, अब उसको हम मेंबरशिप देंगे, लेकिन वो तब तक रहेगी, तब तक वो कंफर्म नहीं होगी जब तक वो वेरीफाई नहीं होगी। In this case, we are talking about a student who is basically from Kashmir, but due to some purpose, whether studies or some job, he is in Delhi or Chandigarh or any other part of India. And once he is trying to become a member, his membership is disallowed because his actual location is not being confirmed. So now he takes the option for applying under a verified membership column. And under that, once he is submitting the application, then that part is to be verified. तो उसके लिए सपोज उसमें अगर उसका ओरिजिनल एड्रेस है पुलवामा, श्रीनगर या सोवर, तो उसको उसको मे बी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आजकल कुछ है, तो वो अपलोड करेगा, और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अब मैकेनिज्म है, ऑनलाइन मैकेनिज्म्स आर देयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे पोर्टल्स पे जो वेरीफाई होता है, तो उसमें वेरीफाई ऑप्शन आता है, तो फिर उस पर क्लिक करके उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो जो डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी है, तो उनका वो जो डॉक्यूमेंट नंबर होता है, मतलब जैसे सर्टिफिकेट्स को सर्टिफिकेट नंबर होता है ऊपर, है ना, यस सर। फिर वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ, ये सर्टिफिकेट नंबर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, ये इस शख्स को, जो इसका सन ऑफ है, इसको इस जगह रहता है, इसको इशू की गई। तो वंस दैट विल हैपन, तो इसकी जो रेजिडेंस है, मतलब वो कंफर्म हो जाती है, तो ये एज अ मेंबर कंफर्म हो जाता है। तो दिस वे वी कैन डू इट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस है, इसमें ये फीचर्स फिर इंटीग्रेट होती है वन बाय वन, ये देखा जाता है कौन कौन सा इश्यू है इसमें, उस इश्यू पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है, आजकल जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिकेशन होते हैं इन प्ले स्टोर ऐप्स को डेवलप करने में और कस्टमाइज करने में, वो फिर उस पर काम करके उसमें वो फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो उसी तरीके से वी कैन गेट website play store app developed, and then we can promote cross border tourism through that application। फिर आप देखिए, अब आप बोलेंगे कि आप कैसे पता चलेगा, जैसे परसों आपको मैंने आपके साथ डिस्कस की काउच सर्फिंग, और आपने फिर वो देखा, आपने उसको पूरी तरह से, इनफैक्ट आपने एक अकाउंट भी ओपन किया उस पर, इजंट इट? और अब आप उसको यूज भी कर सकते हैं, जैसे आपको आरिफ वानी दिल्ली से मैसेज कर रहा था कि मुझे श्रीनगर आना है, और आपके पास ये ऑप्शन था आप कि वो आपके पास पे कर सकता है। यू गॉट इट?
तो yes sir, उसमें yes sir, yes sir. जब हम बात करेंगे उस चीज की, वो तब हुआ जब आपने काउच सर्फिंग पे अपना अकाउंट ओपन कर दिया। लेकिन काउच सर्फिंग जो है बहुत सालों से एग्जिस्ट हो Yes, sir. रही है, लेकिन आपको काउच सर्फिंग के बारे में कब पता चला? जब परसों आपने सर बताया। इजंट इट? और जब मैंने आपको बताया तभी आपने उस पर अकाउंट क्रिएट किया, और जब आपने अकाउंट क्रिएट किया तभी आरिफ वानी ने आपको मैसेज की दिल्ली से कि मुझे श्रीनगर गुलमर्ग आना है, एक रात मुझे श्रीनगर में स्टे करना है। इजंट इट? और Yes, sir. अब आप देखिए कि दैट मीन्स कि जो एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे उसको लोग तो यूज करेंगे उसका, लेकिन लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी ऐप है, कैसे क्या इसको करना है। तो उसके लिए हम उस एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते, ताकि लोगों को पता चले कि हम इसके Yes, sir. अक्रॉस द बॉर्डर जा सकते हैं, हमारी अकोमोडेशन फ्री होगी, हमारा खाना पीना फ्री होगा वहाँ पे, और बाकी फैसिलिटीज भी हम एंजॉय कर सकते हैं। और वंस यू विल गिव पीपल दैट ऑप्शन, people will come forward not in hundreds, but not in thousands. I can say in tens of thousands or lakhs, and will participate in this model. और उससे Yes, sir. there will be a lot of movement across the borders, and cross-border tourism will flourish. And with flourishing of cross-border tourism, you will see how the perceptions of people will change, how peace will prevail. So that is how you can think of making use of peace tourism models in resolving conflict, in mitigating conflict, or in promoting peace in your area, right? So this was about today's topic, and if you want to know further about it, you can feel free as you keep it open for discussion.